Remember, Jesus said, I have come to fulfill the law. यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को परिपूर्ण करने आया हूं। और क्या सिखाया यीशु मसीह ने? What did he teach? He said, the greatest commandment is that you love your God with all your heart, all your mind, all your strength, and love your neighbor just as yourself. कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे मन, अपने सारे बल से प्रेम करो, और अपने भाई से, अपने पड़ोसी से जैसा तुम अपने आप से करते हो वैसा ही प्रेम करो। एक और जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम तुम्हारे भाई को जो तुम्हें नजर आता है उससे प्रेम नहीं करते, तो वो परमेश्वर जिसे तुम नहीं देख पाते, तुम उससे कैसे प्रेम करोगे? We are talking about fulfilling the law. हमें केवल व्यवस्था को परिपूर्ण नहीं करना है, हमें केवल व्यवस्था को दंड के डर के कारण उसका पालन नहीं करना है, मगर हमारे आत्मिक कद को ऊंचा करना है, जो यीशु मसीह चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, केवल दंड की आज्ञा के कारण नहीं, केवल लोगों की वाहवाही के कारण नहीं। वो कहते हैं कि सारी व्यवस्था इन दो आज्ञाओं पर टिकी हुई है। All the prophets and all the law is rested on these two, that you love your Lord, your God with all your heart, your mind, your strength, and love your neighbor just as you love yourself. Love your brother just as you love yourself. And if I harbor anger, it does not show forth the righteousness of God. अगर मैं सारी व्यवस्था का पालन करूं लेकिन अपने भाई के विरुद्ध मेरे हृदय में क्रोध है, मैंने उसे क्षमा नहीं किया है, if I have offense, and not just offense, but it has now graduated into being anger, केवल ठेस नहीं पहुंची है मुझको, मेरे जीवन के अंदर मेरे भाई के द्वारा जो ठेस लगी है, अब वो चोट बढ़कर उसने गुस्से की जो है वो तब्दील हो गया है गुस्से में। There is anger. I am not able to bless my brother. Every time I think of my brother, I am vexed with anger. जब कभी मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूं, मैं उसे आशीषित नहीं करता, पर मेरे अंदर क्रोध की भावनाएं जागती हैं। And remember, Jesus started with talking about murder, and then he connects it to our anger concerning our brothers. यीशु मसीह ने हत्या के विषय में बातें करना शुरू किया, और वहां से इस बात को वो हमारे भाइयों के विरुद्ध हमारे हृदय में जो गुस्सा है उससे जोड़ते हैं। क्यों? Why? ऐसा क्यों है कि यीशु मसीह हत्या को गुस्से से जोड़ रहे हैं? Think. Remember again, Jesus said, I have come to fulfill the law. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को परिपूर्ण करने आया हूं। कब था पहली बार जब किसी भाई ने अपने ही भाई की हत्या की थी? When was it the first time a brother killed his own brother? What was the reason? The Bible says Cain was very angry with Abel. Let me read that for you. Come with me to Genesis chapter 4. Are we learning something, church? Genesis chapter 4, verse 5. Let's read 4 and 5. हम चौथा और पांचवा वचन साथ में पढ़ेंगे. And Abel also brought
of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. Cain was very angry. Cain बहुत क्रोधित हुआ. That anger that Cain harbored in his heart. Remember, I personally believe that this was not a one-off incident. ये एक ही बार में हुई घटना नहीं है. एक ही बार में घटी हुई घटना नहीं है. एक ही बार में ये सब कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं. लेकिन हर बार जब केन ने अपने अर्पणों को परमेश्वर के सामने लाया और उसके अर्पण स्वीकार नहीं हुए, every time Cain brought an offering and his offering was rejected and Abel's was received, there was anger. There was anger. There was bitterness. And it grew to such an extent over a period of time that it resulted, and Cain was not able to deal with that anger. And it resulted in a brother killing his brother. हर बार जब केन के अर्पणों को परमेश्वर ने जो है स्वीकार नहीं किया, आबिल के अर्पणों को स्वीकार किया गया, हर बार जब ये हुआ, बार बार जब ये हुआ, कई बार जब ये हुआ, तो केन के अंदर जो गुस्सा था वो इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन उसने अपने ही भाई की जान ले ली. And that is why Jesus started off speaking of murder, and then he says, don't let anger against your brother lead you to killing your brother. Do you see the transition? Jesus is not speaking anything outside of the law. He's only giving us a greater standard. यीशु मसीह व्यवस्था के बाहर कोई बात नहीं सिखा रहे. यीशु मसीह ने पुराने करार से अलग कुछ नहीं सिखाया. वो केवल हमारे आत्मिक दर्जे को, He is giving us a higher standard to aim for. He is cutting the root that can lead to that murder, that will lead to that murder. यीशु मसीह जड़ से उस जड़ को ही काट रहे हैं जो उस खून की ओर, उस हत्या की ओर अपने भाई को, अपने दोस्त को ले जाएगा. Are we learning something, church? Jesus is saying, do not call your brother a fool. अपने ही भाई को तू मूर्ख कहकर मत पुकार. अपने ही भाई को तू निकम्मा कहकर मत पुकार, क्योंकि जो ऐसा कहेगा, जो खून करेगा, उसके विषय में नहीं. वो कह रहे हैं वो जो अपने भाई के खिलाफ गुस्सा अपने दिल में पनप कर रखा है, वो जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, वो नरक की आग के योग्य होगा. Now think about this. But हम कितनी आसानी से, how easily do we make fun of our brothers? How easily do we make fun of our friends? And sometimes we say things, maybe you don't mean it, but so easily we say, hey, that fellow's a fool. हम बड़ी आसानी से कहते थे ना, वो मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता. शायद हम मानते ही, शायद हम मानते नहीं उस बात को, मगर कितने ही आराम से मजाक बनाने के लिए, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए हम कहते थे वो मूर्ख है, उसे कोई समझ नहीं है. यीशु मसीह कहते हैं नहीं, क्योंकि वो भाई जिसके लिए तुमने ये कहा है, the brother for whom you have said this now has taken offense. अब उसे ठेस पहुंची है तुम्हारे बातों से.
Now, when this happens over and over again, that offense will graduate into anger. जब ये बात बार बार की जाएगी, जब तुम उसे मूर्ख कहते रहोगे, उसका मजाक बनाते रहोगे, उसे कहते रहोगे कि तू किसी काम का नहीं, तू निकम्मा है, तू किसी भले काम के योग्य नहीं है, उसके अंदर क्या ये जो चोट है, उसके हृदय में जो ये चोट लगी है, वो किसी ना किसी दिन गुस्से में तब्दील होगी. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कॉजिंग योर ओन ब्रदर टू हेट यू. तुम अपने ही भाई को, अपने ही दोस्त को, अपने ही मित्र को, अपने ही भाई को तुम उस जगह ले जा रहे हो जहां वो तुमसे नफरत करना शुरू करेगा. वो क्रोध बढ़ेगा. आप कहोगे कि मैंने तो सिर्फ उसे मूर्ख कहा है, मैं क्यों नरक की अग्नि में जाऊंगा? I just called him a fool. He is fool. Look at the foolish things he does. ये कैसी मूर्खता की बातें वो करता है. मैंने तो सिर्फ उसकी मूर्खता की बातें उसे बताई हैं. तो मैं क्यों नरक के दंड को सहूं? क्या ये ठीक भी है? क्या ये न्याय भी है? But Jesus is saying, no. It's not just about the words you speak. It's about the result of the words you speak. We have to understand that Jesus is saying, your calling your brother a fool will cause him to harbor anger. That anger is equal to murder. So basically, you are pushing your brother. Basically, you are pushing your brother into a place of murder. Why is this important? ये बात क्यों जरूरी है? किस कारण जरूरी है? Because जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम when we go ahead, Jesus is saying, when you bring your offering to the altar. Now you see how this chapter is connected to Genesis chapter 4 and 5. Because out of the altar and somebody's offering that was not received came the feeling of offense, which graduated into anger. And Jesus brings the whole chapter in Matthew 5 from murder to brothers having offense and anger against each other, and now he's starting to speak about altars. वो कहते हैं, Jesus is saying कि if you are bringing a gift, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you. Not you have something against your brother, but your brother has something against you. वो कहते हैं, अगर तुम एक भेंट अर्पण लेकर आए हो और तुमने ये जाना है कि तुम्हारे भाई के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है. कौन सा भाई? वो जिसे तुमने मूर्ख कहा, वो जो अब अपने हृदय में ठेस लेकर बैठा है और शायद वो चोट अब गुस्से में तब्दील हो गई है. Are we learning something? Are we learning something, church? He's saying, when you come to the altar, it's not just about you having anger. It's not about you not murdering your brother. It's not just about you forgiving your brother and not having anger in your heart. He's saying all of it will result in whether your gift is received or is not received. Your offering, your altar that you build
तुम्हारी वेदी जो तुम स्थापित करते हो, तुम्हारी भेंट अर्पण जो तुम लेकर आते हो, वो ग्रहण की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सारी बातें उस पर निर्भर करती हैं. बिकॉज वॉट इज द लॉ? द लॉ इज दिस, द प्रॉफिट्स आर रेस्टेड ऑन दीज टू थिंग्स, दैट यू लव गॉड एंड यू लव योर ब्रदर. सारी व्यवस्था, सारे नबियों ने सिखाई हुई सारी बातें, यीशु मसीह कहते हैं इन दो चीजों पर निर्भर है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो सारे हृदय, सारे मन से, सारे बल से, और अपने भाई से वैसा ही जैसा तुम अपने आप से करते हो. और उसके लिए ये बातें क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम परमेश्वर से प्यार करते हो और तुम उसके लिए अपने भेंट, अपने अर्पण लेकर आते हो, उनका परमेश्वर का कबूलना या उन्हें इनकार करना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम तुम्हारे भाई से प्रेम करते हो जैसा ही तुम अपने आप से करते हो. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.